syllabus I can see here. Let me share my screen first of all with you all. Is the screen is visible, students? Screen visible है क्या? Yes sir. Yes sir. चलो देख लेते हैं सिलेबस में क्या है. Imperative programming. So can you start the recording? Let me start the class first, then I'll start the recording as well. Oh. Oh, very good. अभी हमारा एक प्रोग्राम इसमें बचा हुआ है. If you can see, write a program to swap numbers using call by value and reference for the same. ठीक है? Students. Hello. Can you see your programs? ये sum of digits तो मैंने कर दिया था. Prime भी मैंने कर दिया using function. ये मेरा पेंडिंग बचा था. I told you that I will do it. Write a program to find the factorial using recursion. ये भी कर देते हैं. Write a program to find out the sum of natural numbers using recursion. Sum of natural numbers using recursion. Let us see कितना हो सकता है. अगर आप अपने फ्रेंड्स लोग को बुला लोगे तो अच्छी बात है. Otherwise they all will be in a loss. Great loss. Students. I don't mind waiting for 5 more minutes, but please do call your friends. Otherwise, important चीज होगा बाद में उनको कुछ समझेगा नहीं. Hello. Students, shall I begin now? Hello. Hello. Yes, sir. Is my screen is visible? Is my screen is visible? Yes. Yes sir. जितने भी अच्छे बच्चे बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए, definitely they all wanted to learn here. Anybody can tell me function? What is function? Anyone in the class? What is function? Bolo students. What is my function? Sikka? Yes sir. What is function? हमने किया है कि नहीं function? Group of statements. Yes. Is a group of statement. Is a set of statements grouped together under a common name is called a function. Set of statements grouped together under a common name is called as function, right? Yes. 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 ये क्या आ गया? ये तो MSc का लेक्चर है बाबा. Now we have seen various example for function. And then we have seen that by writing a function you can reduce the program size and debugging of the program will be easier. Now here you have been given one practical, that is the next topic. I will call it as recursion. Recursion, very short and sweet definition is calling itself.
calling itself is called as recursion. Calling itself is called as recursion, students. खुद को कॉल करना और अपने वर्क को पूरा करना is called as recursion, right? Student, hello. Student, हेलो। जैसे कि एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप जब एग्जाम हॉल में एग्जाम लिखने बैठते हो तो जो आप पढ़ के जाते हो वहाँ पे कॉपी करते हो कि आंसर को रिकलेक्ट करते हो, रिकॉल करते हो, खुद के ब्रेन से आंसर रिकॉल करते हो कि अपना जो साइड में स्टूडेंट कोई बैठा रहता है उसके ब्रेन से आंसर एक्सेस करते हो? क्या करते हो तुम लोग एग्जाम में? जब ये आंसर लिखना रहता है तो कॉलिंग योरसेल्फ करते हो, कॉलिंग इटसेल्फ करते हो, किसी और को कॉल करते हो हेल्प के लिए? Calling itself. कॉलिंग इटसेल्फ। नई जगह में आप कहीं गए, तुमको भेजा गया, गो एंड गेट दिस थिंग्स सम न्यू प्लेस। सो कैसे भी तो आप वहाँ पहुँच जाते हो किसी से पूछ के, बट वाइल कमिंग बैक यू आर कॉलिंग योरसेल्फ कि ये ओके यही रोड था क्या, ये गली था क्या, ये रास्ता था क्या? यू आर कॉलिंग योरसेल्फ एंड यू आर कमिंग बैक टू योर होम, राइट? होता है कि नहीं होता है स्टूडेंट्स? हेलो Yes. हेलो। So can you give me some more real life example where we can say calling itself? Calling itself. बोलो students. Calling itself. आप जब पढ़ाई करने बैठते हो, जब कुछ भी मेमोराइज करते हो, सपोज अभी मैं ये करूँगा कि कल तुम्हारा टेस्ट है, तो जो भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में आप क्या करोगे? कैसे अपने आप को मेमोराइज करोगे कि आपको लूप्स आते हैं कि नहीं, कंट्रोल्स आते हैं कि नहीं, फंक्शंस आता है कि नहीं? हर चीज़ को खुद को कॉलिंग योरसेल्फ एंड चेक योरसेल्फ वेदर यू नो दीज थिंग्स। नहीं है तो अगेन यू विल बी रिफरिंग वेरियस मटेरियल्स एंड ऑल। और दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स, मैं एज अ टीचर आई एम नॉट गिविंग यू एनीथिंग एज अ नोट्स और एनीथिंग, and other teachers might be giving you the notes, but for this I had given you the reason कि जो टीचर नोट्स देते हैं वो, जिसे आपको 11th में भी नोट्स मिला, 12th में भी मिला, 10th में भी मिला था, वो टीचर का हमको ज़्यादा कुछ आता नहीं है, सब भूल गया। उन्होंने बहुत अच्छा डेकोरेटेड नोट्स दिया, वी हैव लर्नड इट बट वी हैव नॉट लर्न इट प्रैक्टिकली। लेकिन हमारे जो स्कूल के टीचर थे प्रैक्टिकली सिखाते थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, वो हमको भूलता नहीं है स्टूडेंट्स। तो हम भी आपको प्रैक्टिकली बताना चाहते हैं। आई डोंट वांट टू गिव द स्पून फीडिंग, ये पढ़ लो और ये आएगा, ऐसा नहीं है। जितना भी पढ़ो उतना आना चाहिए स्टूडेंट्स, राइट? स्टूडेंट्स हेलो। हम आपको किचन में रेसिपी ऐसा नहीं बता रहे हैं, जस्ट रीड दिस रेसिपी एंड दिस इज द वे यू वांट टू मेक द बिरयानी एंड ऑल। आई एम टेकिंग यू टू द किचन एंड दैट मीन्स लाइव प्रोग्रामिंग हम तुम्हारे साथ करते हैं एंड विल टीच यू हाउ टू मेक द फूड्स एंड ऑल। सो व्हाट यू वांट द अदर टीचर के जैसा कि तुमको सिर्फ बुक में सिखा रहा है कि बाबा देखो ऐसा ये वेजिटेबल बनाते हैं, ये बिरयानी बनाते हैं, ऐसा नॉनवेज बनाते हैं, बट दे नेवर टेक यू टू द प्रैक्टिकल लाइफ। चलो कम टू द किचन, आई विल शो यू, राइट स्टूडेंट? Yes, आई एम sir. नॉट, आई एम टोटली अदर वे राउंड। तो अगर आप प्रैक्टिकली एक बार एक भी चीज किचन में बनाना सीख जाओगे तो डेफिनेटली विल ट्राई समथिंग एल्स आल्सो टुमारो, सेकंड थिंग, थर्ड थिंग। लेकिन अगर बुक से ऐसे रीड करते रहोगे और कभी बनाने नहीं जाओगे किचन में तो तुमको कभी बनाने आएगा ही नहीं, कितना भी रेसिपीज पढ़ लो स्टूडेंट्स। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आपको नया जब कुछ भी बनाने का टाइम आएगा तो चलो लेट मी सी दैट बुक, लेट मी रिफर दैट बुक। अगर आज पढ़ा बुक और कल से वो बनाना है तो नहीं, पूरे मेरे सामने पहले बुक रखो, मेरे सामने पहले फिर से वीडियो दिखाओ। लेकिन प्रैक्टिकल अगर एक बार करके सक्सेस कर लिया है then definitely you'll not ask for the book or that video whatever you have seen to make the product, right student? Will you refer that book second time? Bolo students, are you getting my point? Hello students, Yes, sir. Sir. मम्मीज घर पे हैं, डू दे रिफर द अगेन रेसिपी का बुक पढ़ के खाना बनाते हैं कि ऐसे ही बना लेते हैं? ऐसे ही बना ले। क्यों? क्योंकि उनका मम्मी पापा ने उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया है। और तुम्हारा ट्रेनिंग कैसा हो रहा है? हाँ,
उनको कभी भी पूछोगे 1 महीने के बाद भी बनाना होगा, 1 साल के बाद उनको ब्रेक करो और फिर बनाना रहेगा, देन ऑल्सो दे विल मेक। तो ऐसे स्टूडेंट्स आई वांट टू गिव यू द प्रैक्टिकल नॉलेज, आई डोंट वांट टू गिव यू द बुक का नॉलेज कि ये देखो ये नोट्स ले लो, ये प्रोग्राम है, ये ऐसा होता है वैसे होता है बस, और कोई भी कुछ करके दिखाया नहीं। मैं आई थिंक ऑल प्रोग्राम्स वट एवर आई टिल नाउ वट एवर प्रोग्राम्स आई हैव रोट इट फॉर यू, आई हैव एग्जीक्यूटेड ऑल द प्रोग्राम्स इन फ्रंट ऑफ यू, राइट स्टूडेंट्स? लिखा है कि नहीं लिखा ऐसा प्रोग्राम, कैसे दे दिया हमने? यस सर, लिखा लिखा है। है। सब लिखा है और सब एग्जीक्यूट करके दिया है। तो हम बात कर रहे थे फंक्शन की, और एक प्रोग्राम जो बात हुआ है प्रैक्टिकल में फैक्टोरियल का। तो ये फैक्टोरियल का अगर आपको प्रोग्राम याद होगा, इफ माई स्क्रीन इज विजिबल, हमने क्या लिखा था उसमें? एक नंबर आएगा और एक लॉन्ग इंटीजर फैक्ट हमको रिट्रीव होएगा, और एक लॉन्ग इंटीजर फैक्टोरियल होगा, फैक्ट उसको एक इंटीजर देंगे और हमको लॉन्ग इंटीजर आंसर आएगा। फिर क्लियर स्क्रीन होगा, प्रिंट होगा, स्कैन एफ होगा, और फिर f इज इक्वल टू फैक्ट n होगा, और फिर प्रिंट एफ आ जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ सो एंड सो इज सो एंड सो, एंड देन ये क्लोज हो जाता है। और फिर हमारा हमने लिखा था लॉन्ग इंटीजर, जस्ट मैं रिकलेक्ट कर रहा हूँ आपको, इंटीजर x, एंड देन वी रोट लॉन्ग इंटीजर maybe f is equal to 1, and then we wrote for I is equal to 1, I is less or is equal to x, I plus plus, f is equal to f into I, and then finally we said return f and close this, right? ये लिखा था ना स्टूडेंट्स? हेलो स्टूडेंट, यस सर। आप उसी को अगर मुझे ये कॉलिंग फंक्शन वैसे ही रखो, कॉलिंग वैसे ही रहेगा। अब कॉल्ड में मैं चेंज कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं लॉन्ग इंटीजर फैक्ट integer x, and then I'm writing long integer f, जिसमें हम फैक्टोरियल को स्टोर करेंगे, एंड देन आई एम चेकिंग इफ x इज इक्वल टू 1, अगर 1 है तो रिटर्न 1 करना, राइट? या 1 है या 0 है, x 0 को ही देगा तो 0 का भी फैक्टोरियल 1 होता है, और 1 देगा तो 1 का भी फैक्टोरियल 1 होता है। एल्स f इज इक्वल टू x इंटू फैक्ट ऑफ x माइनस 1, ओ रिटर्न f, ये फैक्टोरियल देगा स्टूडेंट्स। अब जरा इसको हम लोग चेक करते हैं। मान लो आपको यहाँ पे किसी ने नंबर 5 दे दिया, राइट? चेक करो आप। सो इज दैट x का वैल्यू 5 है, इज x इज 1 राइट नाउ और 0? x 1 और 0 तो नहीं है ना, कि 0 1 है, क्या है? 5 है ना स्टूडेंट्स? हेलो हेलो यस सर। स्टूडेंट, तो हम एल्स पार्ट में आ जाएंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे एल्स, बिकॉज इट इज नॉट 1 और 0, सो आई एम कमिंग टू एल्स पार्ट एंड आई विल राइट 5 इज इक्वल टू सॉरी f इज इक्वल टू 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ x माइनस 1, ये वाला। और ये देखो अब खुद को बुला रहा है, फैक्टोरियल इज कॉलिंग फैक्टोरियल। सो ये लाइन से क्या हो गया? 5 इंटू फैक्टोरियल 4, सो नाउ इट इज पासिंग 4, एंड नाउ अगेन x इज नॉट 1 और 0, सो अगेन यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा? ये तो 5 पहले से ही है, और अब हो जाएगा 4 इंटू फैक्टोरियल 3, so again you are calling yourself, now number has become 3,
So number is not again 1 or 0. It is going to become now 3 into. तो ये हो जाएगा 5 into 4 into 3 into factorial 2. So again, what is happening? It is calling itself. So then if it is calling itself, this is going to become 5, 4, 3 into 2 into fact 1. अब देखो क्या हो रहा है, fact 1 जब आ रहा है तो ये जब 1 हुआ है, so is x is 1. Yes sir, x is 1. So ये बोलता है return 1. Return 1 जब fact 1 है तो यहाँ पे 1 रिटर्न आया है, तो वो जब 1 हो जाएगा तो बिफोर दैट वट एवर नंबर यू हैव रिटर्न 5, 4, 3, 2 and 1, answer is going to be 120. Student, just have a look in the difference between the factorial using function and factorial using recursion. ये दोनों को देखो जरा, रिकर्शन और फंक्शन में क्या डिफरेंस हो रहा था. रिकर्शन में क्या हो रहा है, फंक्शन को एक बार आपने कॉल किया, फिर फंक्शन खुद को बार बार बुला रहा है. स्टूडेंट हेलो, फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन को आप ही कॉल करते हो, फंक्शन खुद को कॉल नहीं करता है. कॉलिंग फंक्शन यूज टू कॉल दी कॉल्ड फंक्शन. यहाँ पे फैक्ट खुद को बार बार कॉल करता है, खुद को कॉल करते हैं हम. दैट इज कॉल्ड रिकर्शन. कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड एज रिकर्शन. स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? हेलो, Yes, sir. आपको विजुलाइज हो रहा है? देखो ये लाइन में क्या हो रहा है, बार बार ये लाइन में यू कैन सी, लुक एट दिस, आप इसको बार बार कॉल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ, Yes, sir. Yes. जब 5 आया तो आपने लिखा सर 5 इंटू फैक्टोरियल 4. जब आपने फैक्टोरियल 4 आया तो पहला बार इधर कॉल गया, इज इट एक्स इज 4 और 1, सॉरी 1 और 0, नो. सो देन दिस इज गोइंग टू बिकम 4 इंटू फैक्टोरियल 3, देन इट विल बिकम. तो पहली बार जब आपने कॉल किया था तो ये हुआ था 5 इंटू फैक्ट 4. जब दूसरा बार कॉल हुआ है तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू फैक्ट 3. नेक्स्ट टाइम कॉल किया है तो ये हो गया 5, 4, 3 फैक्ट 2. नेक्स्ट टाइम कॉल गया है तो ऐसे सब ये हो जाता है फिर. सो कैन वी राइट द प्रोग्राम फॉर दिस फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्शन? लेट मी राइट द प्रोग्राम फॉर दिस. ओके स्टूडेंट्स, फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्शन. हाउ मेनी पीपल हैव जॉइंड? 45. पॉइंटर करेंगे तो सब बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा इन लोग को, दे विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग. My screen is visible, students? Hello. Yes. Yes, sir. आप देख, Can you please आपको एक, record? हाँ यस डेफिनेटली आई विल रिकॉर्ड, बट रिकॉर्डिंग मैं इसीलिए नहीं करता हूँ स्टूडेंट, ये जो बाकी बच्चे जो घूमते हैं ना, दैट्स द रीजन आई डोंट रिकॉर्ड. ठीक है, बट आई विल रिकॉर्ड एज आई टोल्ड यू. ओके, so I'm having one variable which will store the answer, that is f, and then I'm declaring my function declaration, long integer fact, and this will take integer as an input. Input is integer, output is long integer. Then I'll have to go with the clear screen, and then first you have to enter the number, enter an integer, and then after getting the number, first you ask for the number, read that number, %d, ampersand number, and then you should call your friend. And once you're calling your friend, this friend will return you something. So friend name is fact. Fact को बुलाया और आपने उसको नंबर दिया और वो आपको थोड़ी देर के बाद में एक आंसर लाके देगा. And whatever answer I'll get it, that answer is going to be stored in f, which is long integer, and I'll have to print that. So I'll have to write factorial of %d is %ld. %d is %ld, that is n का f है, and then get ch, and then
close this. Now I'll have to define my long integer function, long integer fact, integer x, and as I told you, there is a variable called a long integer, which is f. Now I'll have to check what you have given. If my x is 0 or it is 1, is x is 0 or 1, what is your factorial, students? Return क्या करना है? Return 1. Else if it is not 0 or 1, then I'll write f is equal to x into factorial of x minus 1. Well, 5 into factorial of 4. So it will make a call again to the same function, factorial 4, which is not again 0 or 1. So again it will call itself. Okay. And then after all these things, I'll have to return the answer, return f, and I will have to close this. So there is a difference between function ka program, factorial using function, and factorial using recursion. So let me save this program. Fact recursion, I'll say recursion ka fact hai .c. Run this program. I said 5. See what you are getting. Student. Hello. Students. Yes. Yes, sir. And same program we have written it using function. Change the number again. If you want to change the number, you can go with the 6. You can see 720. And so on. So what is happening once this function receives number 6? तो क्या करता है? X is not 0 or 1. तो क्या करता है? 6 into factorial 5. फिर से factorial को call होता है. Then again 6 into 5 into factorial 4. Then 6 into 5 into 4 into factorial 3 and so on. This function is calling itself. This is called as recursion, students, right? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Anyone who has not understood this, please raise your query. अगर नहीं समझा है तो मैं फिर से बता सकता हूँ, जिसको भी नहीं समझा है. हाँ, students. Anyone who has not understood? Sir, कोई कुछ function बोलता और है? recursion का difference? यहाँ पे फंक्शन और रिकर, जब इसको आपने फंक्शन के थ्रू लिखा था तो क्या हो रहा है? तो आप खुद ही बताओ डिफरेंस. मैं यहाँ पे इसका एक फंक्शन भी लिख रहा हूँ और दोनों साथ में देखो. सेम प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन. लॉन्ग इंटीजर फैक्ट integer x or long integer f, which is 1 right now, which is 1 for I is equal to 1, I is less or is equal to x, I plus plus. फिर आपने क्या किया था? f is equal to f into I. आपने 1 से x तक सबको मल्टीप्लाई किया और बाद में आपने रिटर्न f कर दिया. और तो अगर मैं अभी ये मैंने रिकर्सन के थ्रू दिखाया है और अभी ये ब्लॉक कर दिया मैंने, और ये फंक्शन के थ्रू आएगा. वो इंटीजर आई कर देते हैं, रुको. अब देखो यही प्रोग्राम का आंसर स्टूडेंट 6 किया तो भी आंसर आ रहा है, राइट? आ रहा है. Yes, sir. अब आप मुझे बताओ, दोनों साइड में लिखे हुए हैं, क्या डिफरेंस लगा अपने को दोनों में? बोथ द फंक्शंस आर देयर, फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्सन एंड फैक्टोरियल यूजिंग फंक्शन. पहले में क्या हो रहा है? आपने एक बार उसको कॉल किया, वो अपना काम करके जाएगा, राइट? इट विल गिव यू द फैक्टोरियल. दूसरा क्या हो रहा है? वो भी फैक्टोरियल दे रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, कैसे दे रहा है आपको?
फैक्टोरियल खुद को बार बार कॉल कर रहा है, राइट? यहाँ पे देख रो खुद को कॉल हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे जो लाइन है ये स्टूडेंट। Yes, sir. आपको कोई बोलेगा चलो टेल मी द टेबल ऑफ 7, कैसे बोलोगे सर? 7 1 जा 7। अब फिर से खुद को कॉल करो कि मम्मी को बुलाओगे? 7 2 जा 7 3 जा। क्या कर रहे हो अभी? खुद को कॉल कर रहे हो, क्या कर रहे हो वहां पे? खुद को कॉल। खुद को कॉल कर रहे हैं, खुद को कॉल कर रहे हैं। कब तक कॉल करोगे? जब तक मैं बोलूंगा कि बाबा ये जब तक अगर 7 का टेबल पढ़ रहे हैं 10 जा नहीं हो जाएगा तब तक कॉल करते रहो। इज द काउंटर हैज बिकम 10। काउंटर मतलब चेक करो कितनी बार आपको बोलना है, 7 10 जा तक बोलना है। तो 10 हो जाएगा तो बस बंद, राइट? होगा कि नहीं होगा Yes. स्टूडेंट्स? यस। तो वही खुद को कॉल करना है। कितनी बार कॉल करना है सर? डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। किसी किसी को 2 बार पढ़ते हैं तो मेमोराइज होता है, कोई 10 बार पढ़ता है तो मेमोराइज होता है। तो कितनी बार रिकॉल करोगे खुद को? कोई चीज जब मान लो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हम पढ़ाई करते हैं, सो हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू रिकॉल योरसेल्फ? कितनी बार वो स्टेटमेंट बार बार मेमोरी में आप वही पढ़ते रहते हैं? फंक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स ग्रुप टुगेदर, क्या रहता है, क्या बोलते हैं? सेट ऑफ स्टेटमेंट्स ग्रुप टुगेदर अंडर कॉमन नेम इज कॉल्ड अ फंक्शन। सेट ऑफ स्टेटमेंट्स ग्रुप टुगेदर अंडर कॉमन नेम इज कॉल्ड अ फंक्शन। कितनी बार में याद होता है? क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? खुद को कॉल कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप स्टूडेंट? खुद खुद को को कॉल। कॉल। खुद को कॉल। और ऊपर वाले फंक्शन में देखो क्या हो रहा है। इज इट कॉलिंग इटसेल्फ एवरी टाइम कि एक बार किसी ने कॉल किया एंड ऑल द वर्क हैज बीन डन? इसमें खुद को कॉल हो रहा है क्या? नहीं सर। नहीं हो रहा है। दूसरे वाले में कॉल हो रहा है। तो क्या डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों में? हाँ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है? हाँ स्टूडेंट्स, सर एक बार आप नीचे Yes. वाले का वो करके दिखाओ ना। क्या समझा नहीं? आई मीन क्या बोल रहे हो? प्रेजेंट आउटपुट करके दिखाओ ना आउटपुट। नीचे वाले का। हाँ, आउटपुट आउटपुट। चलो तो मैं पहले वाले को ब्लॉक करता हूँ, ठीक है? यस। ये मैंने ब्लॉक किया, ये मैंने ब्लॉक कर दिया। चलो मैं तुमको सिंपल बात बोलता हूँ। चलो कोई बोलता है चलो मुझे 1 से 10 तक ऐड करो, तो आप क्या कर रहे हो? कोई आप कैसे ऐड करोगे स्टूडेंट? 1 1 प्लस, आप खुद को कॉल कर रहे हो, 1 प्लस 2 3। आप क्या कर रहे हो? कब तक अपने को कॉल करना है? आपको कहाँ तक ऐड करना है स्टूडेंट्स? जब तक 10 नहीं हो तब जाएगा, राइट? 10 9। हाँ, 1 प्लस 2 प्लस 10 तक जब तक चलना है, या 20 तक जो भी है। तो अगर मैंने 1 से 10 तक ऐड किया तो आपने पहले एक बार कॉल किया 1, हैव आई रीच टू 10? नो। देन व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? 2। व्हाट इज द आंसर? 3। हैव आई रीच टू 10? नो। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? 3। आंसर 6। रीच टू 10? नो। नेक्स्ट नंबर? वो जो खुद को कॉल कर रहे हो, राइट स्टूडेंट्स? चलो ये मैं आपको रन करके फिर से दिखा देता हूँ। सो दिस 6, यू कैन सी द आंसर इज 720, राइट? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहाँ पे जब आपने 6 या 5 दिया तो इसने क्या किया? इसने किया था कि ये ब्लॉक में कर रहा हूँ, 6 इंटू फैक्ट 5 हुआ। फैक्ट 5 जब कॉल हुआ है तो x इज नॉट 0 और 1, इट इज 5। सो फिर से एल्स में आ जाता है। और फिर से एल्स में आने के बाद में वो क्या करता है कि अब वो फैक्ट 5 का वैल्यू क्या लिखेगा? ये लिखेगा 5 इंटू फैक्ट 4 लिखेगा, राइट? यस और नो स्टूडेंट्स? हेलो? Yes, sir. 4 भी, x is 4 now, which is not 0 or 1. So now it will write it as 6 into 5 into what you can say 4 into fact 3। जैसे अभी मैं आपसे नेचुरल बात कर रहा था कि सर यू आर एडिंग 1 to 10, तो यू सेड 1 plus 1 is 1, 1 plus 2 is 3. Okay, have you reached to the 10th number? No. Do you have to keep this answer in your memory?
3 plus 3 is 6. Have not reached to 10. So now 6 plus 4 is 10. Have not reached to 10. Next number is 5, 15. ये सब मेमोरी में रखते जाना है और खुद को कॉल करते रहना है. तो वैसे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू और खुद को कॉल भी करते रहना है. स्टूडेंट, आप समझ रहे हो कि नहीं? हेलो, यानी प्रीवियस जो नंबर्स हैं 6 इंटू 5 इंटू जो प्रीवियस आंसर है जो मैं नेचुरल, चलो प्रोग्राम लिख के देखते हैं जो मैं आपसे बात कर रहा हूं. तो ये चाहिए तो आप ऐसे अपने समझने के लिए लिख के रखो. 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्ट 2 एंड सो ऑन. ठीक है स्टूडेंट्स? हेलो स्टूडेंट, sir. चलो अब वो जो दूसरा था सम ऑफ नेचुरल नंबर, जो अभी हम बात कर रहे थे, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, रिकर्शन ऑफ नंबर्स. क्या बोले रिकर्शन? क्या प्रोग्राम क्या देना है? आर मतलब रिकर्शन, नेचुरल NAT, नम आर नेचुरल नंबर्स, रिकर्शन यूज ऑफ, जो भी है आप समझ लेना बाद में. तो मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट्स? मुझे एक ऐड नंबर कर रहा हूं मैं. तो जब नेचुरल नंबर कर रहे हैं तो आंसर तो कोई इतना बड़ा आने वाला नहीं है, राइट? आने वाला है क्या स्टूडेंट्स? नहीं ना, छोटा ही रहेगा ना स्टूडेंट. इंटीजर सम. तो आप सम को बुलाओगे और उसको बोलोगे बाबा ये 10 तक के नेचुरल नंबर मुझे ऐड कर दो या 20 तक का ऐड करके दे दो मुझे. तो आप क्या कर रहे हो कि आप यूजर से पूछ रहे हो कि बोलो सर कहाँ से कहाँ तक का ऐड करना है. तो मैं यूजर से नंबर पूछ लेता हूँ बाबा 1 से 15 तक करना है, 12 तक करना है, 5 तक करना है, जो भी आप बोलोगे वहां तक का मैं ऐड करके देता हूँ आपको. राइट स्टूडेंट्स? हेलो, समझ रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. मैं सम ऑफ natural numbers between %d and %d is %d. Sum of natural numbers between %d and %d is %d. Sum of natural number between 1 and num, जो आप नंबर दोगे, is s. ठीक है? Is that clear students? Between so and so is this answer. अब मुझे क्या करना है? मुझे डिफाइन करना है मेरे नेचुरल नंबर को. तो मैं डिफाइन कर देता हूं. चलो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? हमारे पास एक सम करके एक फंक्शन है, और आप मुझे क्या बोलोगे? आप जैसे आपने 10 बोला, तो मुझे क्या कर देना है स्टूडेंट्स? 1 से 10 तक को ऐड कर देना है, राइट? यही करना है ना स्टूडेंट्स? तो Yes, sir. और आप जो भी नंबर बोलोगे वहां तक का मैं आपको ऐड करके दे रहा हूं. चलो मैं ऐड करता हूं अभी. तो जब आपने 10 दिया है, x is 10, मैं चेक कर रहा हूं बाबा, x is 10, मेरे पास एक सम रहने वाला है, और सम अगर मेरा इफ माई नंबर x is नॉट जीरो, क्योंकि मुझे 1 तक जाना है और x नॉट जीरो है, तो जरा ध्यान दो स्टूडेंट्स, क्या होगा यहाँ पे? मैं क्या करने वाला हूँ? कुछ नहीं करेंगे, बहुत छोटा सा प्रोग्राम है. x is नॉट जीरो, तो क्या करोगे आप? x is नॉट जीरो है तो s इज इक्वल टू जो नंबर है x विच इज 10 प्लस इसको ही बुलाओ सम. प्लीज आओ सम. एक मिनट, इसको पहले मुझे इंटीजर रखने दो.
integer sum is equal to x plus x minus 1। तो जब 10 था तो पहले इसने क्या किया, 10 इज नॉट 0, 10 प्लस यू आर कॉलिंग 9, सम 9। सो फिर क्या हो गया, 10 प्लस 9 प्लस सम 8, फिर होएगा 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस सम 7। स्टूडेंट आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? हेलो, नहीं समझा सर। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे आपने 10 दिया, उसको 5 दिया, चलो 5 दे दिया आपने, तो यहाँ पे इस 5 इज 0 होता है क्या? नहीं ना। नो सर। तो 5 इज नॉट 0, तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 5 प्लस सम ऑफ क्या हो जाएगा 4, होगा नहीं होगा? यस सर। अब जो 4 है, अब वो कंट्रोल ऊपर गया, फिर से सम के पास गया, मतलब आपने इसको कॉल कर दिया इसको, तो इज अगेन x इज 0, ये जो 4 पास किया इज इट 0? नो सर। तो अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में, ये हो जाएगा, मैं आपको ऐसा कमेंट करके दे रहा हूं, नेक्स्ट लाइन में दिस इज गोइंग टू बी 5 प्लस 4 प्लस सम कितना हो जाएगा बेटा, 3। 3। होगा कि नहीं होगा? 3, ये बात हुई। अब क्या होगा, फिर से ये 3 को सम 3 के लिए कॉल कर रहा है, तो ऊपर फिर से कंट्रोल जाएगा, इज एक्सिस 0, इज एक्सिस 0? नो सर। नो। अब क्या होगा, बोलो। 5 अब प्लस ये हो, 4 प्लस 3 प्लस सम 2। यस, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस सम 2, फिर क्या होगा, 2 भी अभी तक 0 नहीं है, तो हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, राइट? फिर सम यस। 1 भी 0 नहीं है, तो हाँ, तो फिर से हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। फाइनली जब 0 होएगा, इज इट 0? नो 0, राइट? स्टूडेंट जब 0 हो जाएगा तो उसके पीछे के जितने भी नंबर्स हैं तुमको ऐड करके आ जाएंगे, राइट स्टूडेंट? यस सर। यस। चलो हम चेक करते हैं, या तो अगर आपको और शॉर्टकट कर दें, अगर हम इसमें वेरिएबल ही नहीं लेते हैं, पहले इसको हम पहले ऐसे ही दिखाते हैं, रन करते हैं। क्या प्रोग्राम नेम क्या है? हाँ हाँ, ऑलरेडी है, एरर 2, एफ किधर है? अरे बाबा, एस है इसमें, हाँ ठीक है। एरर 1, क्या गड़बड़ है यहाँ पे, क्या गड़बड़ है? ओ, एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा हुआ है। चलो नेक्स्ट, फिर से एक गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है। ओ, चलो रन करो, आप 5 ले लो। आंसर कितना है यार, ये आंसर तो बहुत डेंजर आ रहा है, 2866 आ रहा है स्टूडेंट्स, राइट? रॉन्ग है, राइट? हेलो, यस सर। रॉन्ग हो गया भाई, क्यों रॉन्ग हुआ? हम लोग भी गेम कर देते हैं, अब हम लोग भी कुछ नहीं करेंगे, देखो अब मैं और गेम कर देता हूँ। ओ, हम गेम करेंगे, शॉर्टकट कर देते हैं, रिटर्न, रिटर्न। अब मुझे पहले बताना कितने लोग को समझा या नहीं समझा। रिटर्न x प्लस सम ऑफ x minus 1, and finally if it is not 0 then you do this, else return x।
सर ये तो बहुत ही छोटा कर दिया आपने। चलो हम लोग रन करके देखते हैं। मैंने 5 बोला, क्या बात किया। ओह स्टूडेंट्स, आंसर आया हुआ है राइट? हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. देखो जरा, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या हुआ वहां पे। ये कह रहा है कि x इज 5 दिया मैंने, विच इज नॉट 0। तो ये क्या कर रहा है, 5 प्लस सम ऑफ 4 कर रहा है। फिर से नॉट 0, तो 5 प्लस 4 प्लस सम ऑफ 3 कर रहा है। फिर से नॉट 0, तो 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस सम ऑफ 2 कर रहा है, एंड सो ऑन। और जब 0 हो जाएगा तो बोले फिर जो भी आंसर हो रिटर्न कर दो फाइनली। राइट स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हो कि नहीं? हेलो। Yes, sir. It will add till it is non-zero. That means 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. और जब सम 0 आ गया, सम 0 आ गया, तो मतलब सॉरी, ये सम ऑफ 0 जब कॉल करोगे, 0 दे के कॉल करोगे, तो x इज 0। बोले x इज नॉट 0, x इज 0 है, तो 0 है, तो बोले फिर रिटर्न x करो, मतलब उसके पहले जितना भी वैल्यू होएगा वो एडअप करके आंसर आ जाएगा। राइट स्टूडेंट्स? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. आई होप यू पीपल आर गेटिंग हाउ टू कॉल। एक लाइन समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे चलेगा? जस्ट वन लाइन, यू आर कॉलिंग योर सेल्फ, दैट्स ऑल। रिटर्न, जैसे आप आपके माइंड में कैसे लेते हो, 10 से 1 तक ऐड करना, तो कैसे करोगे? 10 प्लस ऐड 9, तो क्या करोगे? 10 प्लस 9 प्लस, ये आंसर अपने पास रखो, 10 प्लस 9 19। फिर ऐड को कॉल किया आपने, 8 दिया उसको, फिर 10 प्लस 9 प्लस 8। फिर से जब तक 0 नहीं होएगा कीप ऑन एडिंग, एंड एट द सेम टाइम बैकग्राउंड में 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 ये ऐड करके रखो स्टूडेंट्स। वहां जब 0 तुमको फाइनल आएगा लास्ट में, देन यू रिटर्न दिस आंसर एज 55। राइट? समझ रहे हो कि नहीं? हेलो। Yes, sir. हाँ, खुद को कॉल करके देखो एक बार, देखो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। ओके, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? हेलो। Yes, sir. So Yes, sir. these are my 2 practicals program. Where are those programs? हाँ ये देखो, write a program, ये number 6 वाला, write a program to find the factorial of number using recursion, and one more, write a program to find the sum of natural numbers using recursive function. तो दोनों मैंने आपको करके दिए अभी, बोथ अप टू 100 तो सबको पता होगा ना क्या होता है आंसर? 5050, राइट? Yes, sir. Yes. Anybody having any difficulties in this? Students, ये देखो कॉलिंग फंक्शन में तो कुछ है ही नहीं, आपको एक नंबर चाहिए और इसको कोई रिटर्न देगा, उसको हम लोग एस में स्टोर करेंगे, फिर हम सम को कॉल करेंगे, फिर क्लियर स्क्रीन कर दिया, यूजर को नंबर पूछा, नंबर रीड किया, और फिर तुरंत यहाँ पे कॉल हो गया। जब कॉल किया तो अपना काम करके देगा और मेरे पास एक आंसर आएगा, मुझे डिस्प्ले करना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप चलना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइन कहाँ से आ रहा है, मतलब हार्डली 1 लाइन प्रोग्राम है। अगर ऐसा एग्जाम में आ गया, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट सम ऑफ नेचुरल नंबर्स यूजिंग रिकर्सन, तो आपका मेन, यू विल नॉट गेट द मार्क्स फॉर ये जो आपका मेन कॉलिंग फंक्शन के लिए। आपको अगर ये राइट होगा, ये वाला पार्ट, देन ओनली विल गेट द मार्क्स। ऊपर कुछ भी लिख दिया उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स, याद रखो। ये फंक्शन बराबर है तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। राइट स्टूडेंट, आप समझ रहे हो कि नहीं? Yes, मेरे sir. केस में आपके आउटपुट राइट आएंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो 0 मार्क्स मिलने वाला है। मतलब ये ऐसा है कि फ्यूचर में जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे और क्लाइंट को ऐसा आपने बोलोगे कि सर मैंने आपका प्रोग्राम लिखा है, लेकिन प्रोग्राम अगर उसके काम का नहीं चल रहा है, तो क्या आपको पेमेंट करेगा क्या क्लाइंट? बताइए सर। आप भले ही 10,000 लाइन लिख दिया उसके लिए, लेकिन उसके काम का नहीं है, तो विल यू गेट द पेमेंट? No, sir. व्हेन विल यू गेट द पेमेंट? कब मिलेगा तुमको? फ्यूचर में जब इंजीनियर बन रहे हो और किसी का रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करेगा आपका प्रोग्राम, तो ही यू विल गेट द पेमेंट, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द पेमेंट। राइट? तो हमारे में भी तुम लिखोगे बहुत और अगर हमारे आउटपुट नहीं आ रहे हैं तो इट्स ऑफ नो यूज स्टूडेंट्स, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। ठीक है?
Is that clear, students? Yes, sir. So I think how many are there right now? क्या हो रहा है? 45. So I think I should stop here because most of the students will be missing here. Majority of them are absent right now. Okay, students, I'll stop here then. ठीक है? Okay, sir. Thank you. Okay, thank you बेटा. Thank you, sir. और ये प्रोग्राम अच्छे से करना प्रैक्टिकल में. How many are left out? मेरा प्रैक्टिकल भी अच्छा हो रहा है करके. 6 हो गए हमारे. अभी तक कितने बचे हुए हमारे? 10 है. 4 और बचे हुए हैं. ठीक है. 4 में देखो, अरे ये क्या है? 7 का मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है ना स्टूडेंट्स? एडिशन एंड Yes, sir. सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी किया हुआ है. अरेंज Yes, sir. नंबर्स इन ऑर्डर ये भी किया हुआ है. क्या बात की, हम तो बहुत आगे चल रहे हैं. सम ऑफ एरेज भी किया हुआ है मेरा, राइट? और इसका एक ही बचा हुआ है. 7 भी हमारा हो रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट वाला बचा. राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट वैल्यू दैट इज स्टोर्ड इन द एरे. इसको अभी करना है तो मैं अभी कर देता हूँ. चलो कर ही देता हूँ. एरे में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको आप निकालो. ठीक है स्टूडेंट्स, एक सेकेंड, जरा एक सेकेंड. Yes, students, is my screen is visible? Yes, no? Hello? Yes, sir. अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं. So void main और एरे में थोड़े नंबर स्टोर करते हैं हम लोग. इंटीजर एक एरे ले लिया ए. कितना? 10 बहुत है सर. और फिर एक काउंटर चाहिए उतना नंबर रीड करने के लिए. और बात हुआ है लार्जेस्ट निकालो तो एक मैक्सिमम निकालेंगे हम लोग. CR करेंगे. और फिर I'll tell message printf enter 10 integers. Enter 10 integers, and then to read this I require a for loop. For I is equal to 0, I is less than 10, and I plus plus. And then what do I require is I will be reading this 10 integers, so I'll be requiring scanf now. So scanf %d and ampersand a of I. I got the max. Sorry, I got all the numbers, but I do not know which is maximum over here. So what I'll assume, let the first number is the maximum. तो मैं assume कर रहा हूँ मेरा जो first number है, the number which is at A0 is the maximum, right? ये मेरा पहला number maximum है. अब मुझे क्या करना है? पहले नंबर को मुझे बाकी 9 नंबर से कंपेयर करना है कि ये मैंने जो बोला है सच है कि झूठ है. तो आई एम गोइंग टू कंपेयर दिस विथ अदर 9 numbers. That means from next number onwards, from 1 onwards. Okay. So that's the reason again I require a for loop, because I cannot say that the first is maximum. It has to be compared with the second, third, fourth, fifth, and so on. So while comparison, I'll have to check whether if your max says, आपने max बोला था A0, अगर वो less than A1 है because I is 1, then what you said is wrong. Then the max has to be A of 1. आप ध्यान दो स्टूडेंट्स, बहुत हो गया प्रोग्राम हमारा. कि अगर आपने बोला मैक्स A0 है, बाद में A0 को मैंने A1 से कंपेयर किया और मुझे पता चला कि A0 इज लेस देन A1, तो मतलब बड़ा कौन है? A1. तो मैक्सिमम कौन होगा? A1 होगा, राइट स्टूडेंट्स? हेलो. Yes, sir. फिर क्या करोगे आप? I फिर 2 हो जाएगा. आप जो मैक्स अभी A1 हुआ है, you'll be comparing A1 with A2. Again, if you found out that A1 is less than A2, then again you'll change. You'll be saying now maximum is A2, and so on. You maybe maximum is A3, maximum is A4, maximum is A5. Depends. ठीक है. And finally, आप यहाँ पे लिखोगे maximum
इज इक्वल टू %d, मैक्स गेट ch। बाद में यही सब प्रोग्राम को हम लोग फंक्शन को दे देंगे। फंक्शन बाबा ये एरे लेके जाओ और मुझे बताओ कि इसमें मैक्सिमम कौन सा है करके, लेकिन उसके लिए पॉइंटर आना चाहिए। एंड मेनी पीपल आर एब्सेंट टुडे, सो मैक्स एरे डॉट सी, एरे का मैक्सिमम। ओ क्या हो गया, अच्छा कॉमा रन। नंबर दो स्टूडेंट्स इसको। वो 32767 तो नेगेटिव हो जाएगा, वो वाला नंबर। 78 आया है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर 34,655 वो मैक्सिमम है, क्यों आया एट 78 मैक्सिमम स्टूडेंट्स? सर वो हेलो, लिमिट से बाहर गया ना। यस वो लिमिट से बाहर हो गया तो नेगेटिव हो गया, राइट? आप समझ रहे हो स्टूडेंट? यस मतलब ये रियल लाइफ में सही बता रहे हैं प्रोग्राम। जो बच्चे लिमिट में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, बाहर गए तो वो रेस से आउट हो जाते हैं। जो अपने टीचर पेरेंट्स का कहना नहीं सुनते हैं, लिमिट से बाहर हैं, तो ऐसी हालत होती है। इवन दो इट वाज मैक्सिमम, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन बाद में वो किसी का कहना नहीं सुनता था, राइट? आउट ऑफ द बॉक्स हो गया और फिर ऐसा गिरा कि फिर ऊपर आ ही नहीं पाया वो। स्टूडेंट्स ठीक है ना, समझ रहे हैं? हेलो, यस सर यस। तो ऐसा तुम लोग मत करना बाबा, लिमिट से बाहर मत जाना, ठीक है? Yes, sir. लिमिट में रहोगे कि लिमिट से बाहर जाने वाले हो तुम लोग? लिमिट में। लिमिट Limit. में रहना। हाँ, तो तुम्हारे पेरेंट्स बहुत खुश होते होंगे सर जब मैं अच्छा तुमको बताते हैं लिमिट में रहो, ये करो। बहुत सारे पेरेंट्स तो लगता है मुझे सुनते रहते होंगे। कोई सुनता है क्या मुझे स्टूडेंट्स? हाँ, यस सर कौन कौन बोला भाई यस सर? हाँ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? यस सर काजल हाँ, काजोल। यस सर और मम्मी सुनती रहती, कौन सुनते रहता है मुझे? सर कभी छुट्टी में पापा मम्मी दोनों सुन लेते हैं। हाँ, तो फिर क्या बोलते हैं? सर बोलते हैं कि सर बराबर बोल रहे हैं। बराबर बोल रहे हैं ऐसा? यस सर बराबर बोलना ही पड़ता है बेटा, ठीक है? तो आप लोग मस्ती नहीं करना लाइफ में, सीरियस करो बेटा। टाइम ये गोल्डन टाइम है। ऑलरेडी तुम लोग लेट हो, तुम्हारे पास 2-3 साल का टाइम है कैरियर बनाने के लिए। और ये देखो कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर डूइंग कंप्यूटर साइंस और आईटी राइट नाउ, यू नो, इन इंडिया इटसेल्फ। हाउ मेनी पीपल आर देयर, यू नो? अगर ऐसे एक एक कॉलेज लेंगे, मे बी इन एवरी कॉलेज देर आर 200 स्टूडेंट्स, सो हाउ मेनी कॉलेजेस आर देयर इन इंडिया, राइट? अगर हमारे पास ऐसे 10,000 कॉलेज भी हैं स्टूडेंट्स, आई डोंट थिंक 10,000 से नीचे रहेंगे कॉलेजेस। एंड हर एक कॉलेज में अगर 200 स्टूडेंट्स हैं तो 10,000 इंटू 200 कितना हो गया स्टूडेंट्स? 20 lakhs, राइट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. 20 lakhs हो गया। और अगर हम आईटी का रिक्वायरमेंट देखें तो जॉब कितने लोग को मिलता है? 10% और 5%। मतलब ऐसा नहीं कि जॉब्स आर नॉट अवेलेबल, जॉब्स आर अवेलेबल, बट जब आप अच्छा मोबाइल खरीदने जाते हो, अच्छा गाड़ी खरीदने जाते हो, सब जगह सॉफ्टवेयर लगा हुआ, अच्छा हॉस्पिटल में जाते हो, अच्छा होटल में जाते हो, अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, तो मैं वो अच्छा बनाने के लिए मैं कैपेबल हूँ, देन ओनली द कंपनीज विल वेलकम अस। हम ऐसे कुछ भी करेंगे तो देन वी आर नॉट। अगर आपको सर अच्छा हार्ड सिखा रहे हैं तो यू शुड वेलकम। कोई दूसरा टीचर आएगा, अच्छी बात है, आपको लगेगा अरे वाह टीचर तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन टीचर क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? वो इजी इजी प्रोग्राम सिखा के चला गया। लाइफ में एक चीज अपने पेरेंट्स को भी पूछो कि जो आपको अच्छा नहीं लगता है, दवा आपको अच्छी नहीं लगती, वही आपको ठीक करेगी। पेरेंट्स अच्छे नहीं लगते हैं, बुरा बोलते हैं, बाद में आपको रियलाइज होगा कि नहीं नहीं, इफ माई पेरेंट्स वुड हैव नॉट बीन देयर देन आज मैं इतना सक्सेस में नहीं आता था। और जो मीठा बोलते हैं टीचर्स या जो भी बोलते हैं, वो सब डायबिटीज वाला प्रॉब्लम करते हैं स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
जितनी भी कड़वी बातें हो, कड़वी दवा हो लाइफ में, हर चीज जितना भी डेंजरस वाले हैं ना हमारे जैसे लोग, ये सब आपको ठीक करने वाले हैं, राइट। डॉक्टर ऐसा पेशेंट के साथ नॉर्मल रहेगा तो पेशेंट कभी ठीक नहीं होएगा। पेशेंट बोलेगा दर्द हो रहा है, ऑपरेशन मत करो, तो क्या है फिर, जाओ फिर। चलेगा क्या ऐसा? स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा? क्या करना चाहिए? हार्ड रहना चाहिए कि ऐसे नॉर्मल रहना चाहिए? जोल हार्ड रहना रहना चाहिए। और प्रोग्रामिंग भी इजी सीखना चाहिए कि डिफिकल्ट सीखना चाहिए? क्योंकि अगर आपको टॉप 5% में आना है, 20 लाख के 5% में आना है, तो कितना हो रहा है? मतलब टॉप 5% मतलब 1 लाख स्टूडेंट्स में मुझे आना चाहिए। 19 लाख को पीछे करना है, तो कब पीछे कर पाओगे आप स्टूडेंट्स? नॉर्मल प्रोग्रामिंग करके कर पाओगे कि थोड़ा उनसे और 2 लेवल ऊपर का सीखोगे तब पीछे होंगे? क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? हाँ, डिफिकल्ट। डिफिकल्ट प्रोग्राम। और वो कब सीखोगे? जब बीएससी आईटी खत्म हो जाएगा तब सीखेंगे क्या हम? नो सर, हाँ, साथ में सीख एक्स्ट्रा। साथ में सीखेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यू विल गेट द टीचर जो आपको ऐसे इजी इजी, और राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, मल्टीप्लाई 2 नंबर्स, डिवाइड 2 नंबर्स, परसेंटेज ऑफ 2 नंबर्स, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। अरे बाबा, ये तो कोई भी कर देगा। कंपनी हमको इसमें क्या जॉब का सर्टिफिकेट देने वाला है क्या? काजोल, विल यू गेट द सर्टिफिकेट? जॉब मिल रहा है तुमको ये नो सब सर। करके? व्हेन विल नो वी गेट सर, द ये जॉब? बेसिक्स। हाँ, तो अगर हम कुछ दूसरों से अलग करेंगे, अभी से ये डेस्टिनेशन फिट कर लो अपने माइंड में स्टूडेंट्स, कि मुझे टॉप 5% में रहना है ऑल ओवर इंडिया। जैसे आईएएस का प्रिपरेशन बहुत सारे लोग करते हैं, एमपीएसपी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सिलेक्शन कितने लोग का होता है स्टूडेंट्स? सो सिमिलरली यू आर ऑल्सो इन दिस फील्ड। यहाँ पे भी बहुत सारा सैचुरेशन रहेगा, बट येस जॉब्स आर अवेलेबल। मैं आपको ऐसा डिसअपॉइंट नहीं कर रहा हूँ, बट आपको उसके लिए टॉप 5% में रहना है। मतलब कंपनीज हैं, दे आर हैविंग अ गेट बाउंड्री है, और उसके बाहर बहुत सारे लोग, 20 लाख हर साल लोग आके खड़े होते हैं। एवरी ईयर 20 लाख स्टूडेंट्स आर कमिंग एंड लुकिंग फॉर द जॉब, and who can go inside the company? Only those who are going to satisfy their requirement. किसका रिक्वायरमेंट? कंपनी का। देन दे विल वेलकम यू। यस, दिस स्टूडेंट हैज डन द हार्ड वर्क एंड इज गोइंग टू सेटिस्फाई माय रिक्वायरमेंट, देन यू विल गेट द बेटर जॉब। बाकी 90,000 का क्या होगा? सॉरी, 90% का क्या होगा स्टूडेंट्स? 19 लाख 18 लाख स्टूडेंट्स का क्या होगा फिर? इवन दे हैव डन बीएससी सीएस आईटी और बीसी और वट एवर इट इज, बट अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, तो कुछ नहीं होगा। आप ये पहले से माइंड में ले लो। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स बोल दिए पढ़ना है, टीचर बोल रहे पढ़ना है। आप अपने आप को, खुद को रिकर्शन, खुद को प्रूव करो। आर यू क्वालिफाइंग फॉर फर्स्ट 5% और 10%? इफ नॉट, देन you will not be able to make again your future over here in this field also. Then again you have to step down, like you have already stepped down from your medical and engineering. आपने ऑलरेडी सेकंड ऑप्शन में ले लिया, और इसमें भी अगर टॉप 5-10% में नहीं है तो फिर से आप नीचे उतर जाओ। जिससे वहां पे मेडिकल में 80,000 सीट्स है हमारे पास में, और हम नहीं सेलेक्ट हो पा रहे हैं। इंजीनियरिंग में 60,000 सीट्स हम नहीं सेलेक्ट हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप समझ लो कि 1 लाख की सीट है स्टूडेंट्स। अगर हम नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं तो देन अगेन यू हैव टू स्टेप डाउन। फिर क्या करोगे? जैसे जैसे आप स्टेप डाउन होते जाओगे, आपका जो ग्रॉस इनकम है वो सब कम हो जाएगा। आपका जो इनकम जो कमाना चाहिए सर्वाइवल के लिए, बहुत ही कम हो जाएगा स्टूडेंट। फिर तो नॉर्मल बोले बीए कर लेना चाहिए था, फिर 15-20,000 का जॉब लेना चाहिए था। तो उससे हमारा ब्रेड एंड बटर नहीं होगा स्टूडेंट्स, राइट? चलेगा क्या स्टूडेंट्स? हेलो? नो सर। तो हम, अगर अब हार से तुम्हारे साथ डिफिकल्ट हैं, ये जो बच्चे भाग रहे हैं बाद में रियलाइज करेंगे, और जो बच्चे अभी हैं हमारे साथ, दे विल बी मोर हैप्पी। अच्छा हुआ सर ने, आप बाद में याद करोगे मुझे, अच्छा हुआ सर आप पहले बहुत डिफिकल्ट सिखाते थे। डिफिकल्ट मतलब प्रोग्राम बड़े बड़े लेते थे, ऐसा। और मैं फिर से आपको सबको फ्रीडम देता हूं, जब भी नहीं आता है आप मुझे स्टॉप करो। आई बी मोर हैप्पी कि हमारे सभी बच्चे अच्छे, मतलब वो टॉप 1 लाख बच्चे हमारे होने चाहिए, मतलब। और उसमें भी 1 लाख है तो बोले सर एसआईएस के बच्चे होने चाहिए। एंड यू विल नॉट बिलीव स्टूडेंट्स कि जब मैं प्रोग्रामिंग सिखा रहा था, और जब मुंबई यूनिवर्सिटी के जब कंपटीशन होते हैं, इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन प्रोग्रामिंग के, तो हर बार एसआईएस में ट्रॉफी आती है, हर बार एसआईएस में ट्रॉफी आती है अक्रॉस मुंबई। स्टूडेंट्स, कहीं भी किसी भी कॉलेज से कंपटीशन करा लो, हमारे बच्चे प्रोग्रामिंग में विनर ही होके आते हैं।
क्योंकि हम इतना सभी कॉलेज से इतना ऊपर का लेवल में चलते हैं, बुक में कुछ और रहा होगा तो हमारा और ऊपर लेवल चलेगा। क्यों सर? उससे काम थोड़ी नहीं चलेगा, वो तो सबको आता है, उससे ज्यादा क्या तो ही हमारा डिमांड होगा। राइट स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हो मेरी बातें? हेलो? Yes, sir. यस, तो प्लीज ऐसा आप समझ लो कि सर क्या कह रहे हैं, माइंड में ले लेना है, मुझे टॉप 5% में रहना है। कोई भी कंपटीशन अगर क्लास है तो क्लास में अगर मेरे 100 बच्चे हैं तो मुझे टॉप 5 में रहना है, ये याद रखो। अगर सीएस और आईटी में कंपटीशन हो गया 200 बच्चे हैं तो उसमें भी मुझे टॉप 5 में रहना है, यानी फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स में रहना है, तो ही आपको जॉब है। आप सिर्फ पास हो गए हो, ठीक है, यूल बी हैप्पी, स्वीट सेलिब्रेट करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, उसका कोई मतलब नहीं है। कंपनीज की रिक्वायरमेंट क्या है वो आप इन द फर्स्ट ईयर ऑफ आईटी यू शुड एक्सप्लोर वेरियस एवेन्यूज, वेरियस सब्जेक्ट्स, कि बाबा मैं ग्रेजुएशन करूंगा और एमएससी कर रहे हैं अगर, तो उसके बाद में अभी क्या क्या सब्जेक्ट डिमांड में है, तो कौन से सब्जेक्ट में मेरा फ्यूचर होगा। तो अभी फर्स्ट ईयर पूरा एक्सप्लोर करो आप कि बाबा मुझे डेटा साइंस करना चाहिए, मुझे बिग डेटा एनालिटिक्स करना चाहिए, क्लाउड जाना चाहिए, मशीन में आना चाहिए, एआई में रहना चाहिए, डीप लर्निंग, किस में मुझे मास्टरिंग करना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट किधर है। एंड देन सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स यू शुड ट्राई लर्निंग दोस दैट एरिया which you thought of can make your future is as per your interest. फर्स्ट ईयर में पूरा एक्सप्लोर कर लो किस में मेरा इंटरेस्ट है, किस में मुझे, उसके लिए मुझे क्या क्या सीखना पड़ेगा, उसके लिए कैसे कैसे कौन कौन सी कंपनीज हैं, कैसे कैसे जॉब्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट ईयर पूरा एक्सप्लोर करो। अभी एक सेमेस्टर धीरे धीरे जा रहा है, सेकेंड ईयर में उससे रिलेटेड आप बहुत कुछ उसके आसपास का पूरा सीख लो, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट आ गया है, उसका कोडिंग, उसका बहुत कुछ सीख लो। और थर्ड ईयर में उससे रिलेटेड आप कुछ बना के लेके जाओ, प्रोजेक्ट बनाओ, उस पे एक अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाओ। और जब आप अपना सीवी लिखो और सीवी कहीं पे डालो तो सीवी में आप अपना एक डोमेन नेम लिख दो, .com या जो भी तुम्हारा हर्सल, सिक्का या कैफ है, जो भी जिसके नाम है, एक .com बना दो, एक पूरा वेबसाइट टाइप बना दो, राइट, सीवी में। और उसमें आपके जो प्रोजेक्ट एक दो जो किए हैं, जो सेकेंड ईयर में लर्न किया, थर्ड ईयर में जो प्रोजेक्ट किया है, तो आप क्या करोगे, जब आपका सीवी कोई स्कैन करेगा, देखेगा और वो वेबसाइट में गया, सो दैट स्पीक्स योर वर्क। कोई पूछेगा फंक्शन आता है क्या, अब इसको क्या पूछे, तो करके दिखा रहा है। रिकर्सन आता है, देखो ये तो करके दिखा रहा है। लूप आता है, कितना लूप ये प्रोसेस वेबसाइट में यूज किया हुआ है, राइट। तो हु विल गेट द मोर प्रेफरेंस, यू विल गेट मोर प्रेफरेंस फॉर द जॉब, और द स्टूडेंट हु हैज नॉट डन एनीथिंग एंड जस्ट वो झूठा ही झूठा बोल रहा है, मुझे आता है, मुझे ये आता है, वो आता है, राइट। आप प्रैक्टिकल करके दिखाओगे, कोई बोल रहा है मुझे फूड बनाने आता है, और किसी ने क्या किया, बनाने आता है, बुक लेके गया और कोई वहां पे बहुत सारा फूड ही रेडी कर दिया है, देखो बाबा आपको इसमें कौन सा टेस्टी है, राइट। क्या करना है स्टूडेंट्स आपको? हेलो Yes, स्टूडेंट्स, sir. मेरी Yes, बात sir. समझ रहे हो? अगर फ्यूचर Yes, बनाना है तो फर्स्ट ईयर पूरा एक्सप्लोर करो, बहुत कुछ सर्च करो, टाइम को वेस्ट मत करो। और आज ये एज भटकने वाली है, वो भी मैं बोल रहा हूँ। आपका हर चीज में नंबर 1 करने का दिल करेगा, अच्छे कपड़े, अच्छी बाइक, अच्छा ये, अच्छा वो, और सोशल मीडिया में भटकते रहोगे तो अभी जैसे तुम स्टेप डाउन हो गए हो, पेरेंट्स को डिसअपॉइंट किया है 2 साल बैठ के ऑनलाइन में, और हम सक्सेस नहीं हो रहे हैं, ये स्टेप भी डिसअपॉइंट कर देगा अगर आप कैरियर नहीं बनाओगे तो। डोंट वेस्ट देयर हार्ड अर्न मनी। वो तुम्हारे लिए कमाते हैं कैसे भी करके, तुम्हारा वो फीस भरा तुम्हारा कोचिंग का, और अभी ये ग्रेजुएशन का भरेंगे, और फिर उनको बार बार डिसअपॉइंट क्यों कर रहे हो? दे डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, दे वांट योर फ्यूचर, दैट्स ऑल। दे आर नॉट आस्किंग यू टू पे देयर मनी बैक। What they are saying always is make your own future. So when are you going to make that future? You'll be doing another BSc IT after these 3 years, another FY semester 1, semester 2, semester 3, and you'll be enjoying your life now. What you'll be doing? What is your plan, students? कब प्लान करेंगे? लिव योर रियल लाइफ, नॉट द वर्चुअल लाइफ। सर जो बोल रहे हैं भी सही बोल रहे हैं, मुझे ये करना पड़ेगा। और कंपटीशन के बारे में जो दिखाया जा रहा है पिक्चर, वही कंपटीशन है। कोई भी आप कहीं पे भी देखो, कोई भी कंपनीज आते हैं, आईटी कंपनीज, अगर वहां पे 1000 बच्चे आते हैं तो कितने लोग का सिलेक्शन होता है? सबका सिलेक्शन होता है कि 1000 में से 50 तक होएगा? कितने लोग का हो जाता है स्टूडेंट्स? Okay. very हेलो? few.
Very few. So are we there in very few? Are we there in that very few? And if yes or if no, then when we will come in that very few? And how that will reach to that very few? For that, what you have to do? When will you plan that? After your TY? No, sir, no. Huh? Sir. Now, please, not to step down from this step now. अभी थर्ड कोई मत बोलना बाबा आप नाउ बीएससी आईटी से कुछ नहीं, आई गो फॉर नाउ सम अदर कोर्स, राइट? स्टूडेंट्स फिर से चलो पेरेंट्स को बोलोगे, बाबा पेरेंट्स बोलेंगे चलो अभी कुछ नहीं हुआ, मेरा एक ही बेटा है, मेरा एक दो बेटी है, जो भी है, चलो बाबा बच्चों के लिए ही करना है, फिर से कहीं से बेचारे लोन लेंगे कुछ करेंगे, ऐसा मत करो बार बार। उनको भी थोड़ा जरा अच्छा, उनको भी थोड़ा हैप्पी होने का चांस दो बेटा। हाँ, उनको रुलाओ एक बार। कैसे रुलाओ पता है? असली वाला नहीं, कभी कभी हंसी वाले जो रोने का होता है ना, हंसने वाला, खुशी के जो आंसू बोलते हैं लोग, वैसा रुलाओ कि वाओ मैंने जो ड्रीम देखा था मेरे बच्चे ने, मेरा बेटी ने, बेटा ने पूरा किया। हाँ, वो खुशी को लेके आओ, दैट यू कैन नॉट नेवर परचेस फ्रॉम एनीवेयर। स्टूडेंट्स वैसी खुशी उनको लाके दो। ये वाला रुलाना मत करना कभी, नहीं तो मार पड़ेगी, नहीं तो बोलोगे बाद में सर ने ऐसा बोला था इसलिए मैं तुमको रुला रहा हूं। कौन सा रुलाने की बात किया काजोल मैंने? काजोल, काजोल आर यू देयर? सर हाँ, यस सर, आई एम देयर। हाँ, सो मैंने कौन सा हाँ वो सर, रुलाने? खुशी की आंसू। खुशी के आंसू, यस, खुशी के आंसू का मैंने बात किया है। वैसे लाओ उनको, वैसे उनको प्राउड फील कराओ, राइट? क्योंकि कोई भी पेरेंट्स को जब एज उनका कम होने लगता है तो वो वही सोचते हैं कि मेरा बच्चा मेरे आगे जल्दी से सेटल हो जाए। तो उनको सेटल करो, अपने आप को सेटल कर दो। उसके लिए ऐसा नहीं कि आप सोचो ना कि इतने सारे लोग आईटी सेक्टर में गए हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, यू ऑल्सो कैन प्रूव योर सेल्फ, दैट्स ऑल। सो सी टू इट दैट यू आर ऑलवेज इन द टॉप 5%, टॉप 10%, दैट्स ऑल। लेकिन अगर ऐसा नहीं सोचोगे तो फिर बीएससी आईटी करो या कुछ भी करो, कुछ मतलब नहीं है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? हेलो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, please do prove yourself. And मैं इसमें ही एक छोटा और कर देता हूँ मिनिमम, एंड आफ्टर दैट आई विल वाइंड अप हियर। अगर आप कोई मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम बताना, मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम बताना। तो आई सेड लेट द मिनिमम इज अगेन A0, मेरा फर्स्ट नंबर इज द मिनिमम। तो फेस्टिवल ऑफर के हिसाब से मैंने दोनों प्रोग्राम एक में ही कर दिया, मिनिमम चाहिए या मैक्सिमम चाहिए, ठीक है? तो आप देखो मैंने क्या किया, अगर मेरा मैक्स इज लेस देन AI तो मैक्स फिर वो दूसरा नंबर होएगा। तो ऐसे ही मैं कर रहा हूं, इफ द मेन इज मिनिमम बोले A0 और वो ग्रेटर है, ग्रेटर किससे है? AI से, मतलब A1 से। A0 इज ग्रेटर देन A1, हाउ कम देन दैट इज अ मिनिमम? तो बोले अगर A0 ग्रेटर है A1 से, फर्स्ट नंबर 10 is greater than 8, so 10 cannot be the minimum. So then which is minimum? Sir, then the 8 is minimum. So you have to change your minimum. Right, students? Is that clear? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Then you have to check with then you have to check A1 and A2. Again you found out A1 is 12 and A2 is maybe 9. And is A1 is greater than A2? Yes, sir. Then 12 और 9 को फिर then which is the minimum? Sir, 9 is minimum. तो देखो ये प्रोग्राम में मैंने आपको दोनों चीज करके दे दिया है, राइट? मैंने देखे स्टूडेंट्स टीचर्स को, दे यूज टू टेक वेरी वेरी सिंपल प्रोग्राम्स, राइट? आई यूज्ड टू शाउट एट टीचर्स कि बाबा ये क्या है, तुम लोग फ्यूचर बिगाड़ रहे हो बच्चों का, राइट? मुझे ऐसा डॉक्टर नहीं बनना है जो पेशेंट्स के साथ फ्रेंडशिप करे, पेशेंट्स का इलाज होना चाहिए। एंड यू आर ऑल पेशेंट हियर, सबका इलाज होना चाहिए। तुम लोग को फ्यूचर में क्या बनना है क्या नहीं बनना है, राइट? तो मैं थोड़ा टफ डॉक्टर रहूंगा तुम्हारे लिए, इसीलिए किसी किसी को डॉक्टर पसंद नहीं आया तो लोग डॉक्टर छोड़ के भागते हैं। ये नहीं समझ में डॉक्टर छोड़ के भाग गए हैं अच्छा डॉक्टर को तो बीमारी बढ़ने वाली है। जो भाग रहे हैं 70-72 अटेंड कर रहे हैं, जो नहीं अटेंड कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी फ्यूचर की बीमारी को और बढ़ा रहे हैं, वो स्टेप 3 में जा रहे हैं। अब दे ऑल मस्ट बी थिंकिंग सर हमारा क्या कर सकते हैं? बेटा तुम भाग जाओ, कोई बात नहीं। Whose future is getting spoiled? हाँ स्टूडेंट्स, किसका फ्यूचर बिगड़ रहा है?
किसका फ्यूचर बिगड़ रहा है भाई? Our sir. सर दैट ओनली। यस, भागो ना, कोई बात नहीं, जितना भागना है भाग जाओ। हाँ, जब याद आएगा तो देन विल रियलाइज ये मैंने क्या किया। So just check students, we are getting both maximum and minimum, right? Yes, sir. Yes, sir. ये सब इतना मैंने बोला, रिकॉर्ड तो नहीं हुआ ना स्टूडेंट्स? रिकॉर्ड हो गया है क्या? No, sir. हाँ तो ठीक है। So again we got both the programs, so I'll wind up here students. Take care, please do hard work and whatever things I told you, please follow that. ये पहला साल सर ने बोला एक्सप्लोर करो, और जो हमने सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया, फील्ड डिसाइड किया, फिर सेकेंड ईयर में उसके लिए बहुत सारा नॉलेज मुझे आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस पढ़ के लेना है, समझ के लेना है। और थर्ड ईयर में सर ने कहा है प्रोजेक्ट करने हैं उससे रिलेटेड, और प्रोजेक्ट को हम हमारे सीवी में अटैच करेंगे। दूसरे बच्चे तो केवल सीवी लेके जाएंगे, रिजल्ट लेके जाएंगे, मैं सीवी के साथ में मेरा सीवी दूसरा कुछ बताएगा। तो वहां पे क्या होगा, जब वो लोग सीवी देख लेते हैं, और सीवी देखने के बाद में, और सीवी में जब आपने .com ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट लिख के रखे हैं अपने, तो वो सीवी फिल्टर करके उनका अंदर ही HR लेवल में बात हो जाता है कि भाई ये बच्चा काजोल आ रहा है, इसको लेना है। तो उनके पास एक रेंज होता है कि भाई सिलेक्शन हो रहा है तो कितने से कितने तक का सैलरी देना है। बोले सर हमने तो रेंज रखा है 3 लाख से 8 लाख किया है हमने, हमारे प्रोजेक्ट बनाए हैं। सो देन दे विल आस्क अस, उनको ये बच्चा जाना नहीं चाहिए किसी दूसरी कंपनी में, उसको उनको तो पता है ये बच्चे को कोई भी ले लेगा जो इतना सारा हार्ड वर्क किया है। तो दे विल आस्क यू कितना सैलरी चलेगा, राइट? तो आप उनको बोलोगे 10 लाख रुपए चाहिए, तो बार्गेनिंग करके तब 8 लाख रुपए आएगा। और जो कोई कुछ नहीं बनाएगा तो उसको 3 लाख रुपए भी कोई देने वाला नहीं है स्टूडेंट साल का। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो स्टूडेंट? Yes, sir. यस सर। नहीं, जब आपने हार्ड वर्क किया है तो उनको पता है ये बच्चा जाना नहीं चाहिए। 8 या 9 लाख भी मांगेगा तो अपने सीनियर को फोन करेगा, बोलेगा बच्चा ट्रेंड है सर, चाहिए, ये अपने बहुत काम का है, इसको 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए और भी देना पड़े तो अपन दे देते हैं इसको, बोलेगा चलो डन करो। ऐसे 10 लोगों को लाके पकड़ के क्या मतलब है, जिनको कुछ नहीं आएगा। 3-3 लाख रुपए में मेरे लिए भारी है। 2 लाख, 2 अच्छे बच्चे लेके आएंगे जिनको हम मतलब बड़ा सैलरी, अच्छी बात है, राइट? क्या चाहिए कंपनी को, स्टूडेंट चाहिए कि किसी को भी लेके आएंगे वो? काम आप करना। आना चाहिए, हमें उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला, जैसा मैंने बोला उसको फॉलो अप करके रखना। आई विल नॉट टेल ऑल दिस थिंग्स एवरी नाउ एंड देन। सीवी दे बोलना चाहिए तुम्हारा, सीवी शुड स्पीक। आपका काम ऐसे, मैं डेटा साइंस पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स, टाइम मिलेगा तो कभी मैं उन सीनियर से मिलाऊंगा। बहुत सारे बच्चों ने अपने खुद के प्रोजेक्ट बना के रखे हैं, और बहुत सारे MSc डेटा साइंस के बच्चे दे आर हैविंग जॉब्स। एंड SIS का ट्रेडिशन है स्टूडेंट्स, को हेड करता हूँ, सुधा इज हेडिंग IT, राइट? यस और तो हमारे जितने भी बच्चे अभी तक फर्स्ट क्लास आए हैं, सबके पास अच्छे से अच्छा जॉब है। और जब बच्चों को अच्छा जॉब मिलता है, दे कॉल अस, अप्रिशिएट करते हैं, सर आपने जो राइट टाइम में राइट गाइडेंस दिया, दैट इज हेल्पिंग अस अ लॉट। और जो आप आउट ऑफ द बॉक्स और ज्यादा पढ़ाते हो, वो तो बहुत ही हेल्प करता है। बाद में थोड़े दिन के बाद छोड़ के भी चले जाते हैं, कंपनी उनको हटा भी देता है कि आउटपुट नहीं आएगा, तो इवन टेक यू, दे विल टेक यू इनसाइड, बट दे विल अगेन गिव यू द रिमूवल लेटर आल्सो। Yes, sir. यस, तो प्लीज प्लीज Yes, डू sir. बेटर फ्यूचर। अच्छा हुआ कम बच्चे हैं, थोड़ा हम लोग बात भी कर पाए, अच्छी बात है स्टूडेंट्स। सो आई विल वाइंड अप हियर, ओके स्टूडेंट्स? सर बोलो बेटा, कोई कुछ बात ये करना चाह रहे नहीं सर, वो मैक्स आ रहे और सर नेचुरल नंबर भेज दो ना। हैं? हाँ ये नंबर, हाँ और कुछ बात करना चाह रहा था कोई मेरे से? सर एक्चुअली मुझे पूछना था कि सर आप जो बोलते हो कि लॉजिक डेवलप करो, लॉजिक, तो सर वो कैसे डेवलप कर सकते हैं हम लोग? लाइक क्या करें, मैथ्स करें कि लाइक कौन सा कुछ नहीं, क्या ट्रिक्स है? कुछ, आई नो। कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक ये है कि
पहले आप छोटे छोटे प्रोग्राम करो, छोटे छोटे, हमेशा छोटे छोटे करो, राइट। जैसे मान लो लॉजिक डेवलप करो, जैसे कोई एथलीट है, किसी को स्पोर्ट्स में, किसी को रनिंग में, किसी को जंप में, उसको अगर आगे आना है तो क्या करेगा, वो रिकर्शन करेगा। आज उसका मान लो और मे भी हो सकता है 1 किलोमीटर 10 मिनट में होता हो, तो वो क्या करेगा, फिर उसको और कम करेगा, और टाइम कम करेगा, टाइम कम करेगा। कितना टाइम लग जाएगा उसको, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। वैसे ही आप पहले छोटे छोटे प्रोग्राम करो। हाँ भाई, मुझे सम ऑफ 2 नंबर्स आ रहा है, तो फिर 3 भी आने लगा, फिर 4 भी आने लगा, फिर उसमें सब्ट्रैक्शन भी आने लगा, राइट। टाइम लगता है बेटा, राइट काजोल। यस सर। तो बुक के जो चैप्टर में एंड में कोई भी बुक उठाओ, कोई भी सी प्रोग्रामिंग के बुक उठाओ, उनके स्टार्ट एंड के जो चैप्टर्स के एंड में जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको सॉल्व करो। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं मुझे पूछो, सर ये देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, और हो सकता है एक दिन चलो हम लोग एक काम करेंगे, एक दो बुक्स के जो बिहाइंड में जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं, उनके प्रोग्राम करते हैं, देखते हैं हम लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, राइट। आप समझ रहे हो। तो हर एक चैप्टर को हम लोग सॉल्व करते हैं, और मुझे नहीं लग रहा है कि हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अभी देखो मुझे लग रहा था मेरे 6 प्रैक्टिकल पूरे हुए, पता चला मैंने देखा तो अरे वो 7th भी पूरा हो रहा है। हम लोग इतना आगे चल रहे हैं स्टूडेंट्स, और इतना कोई भी कॉलेज में अगर आप पूछोगे तो सी प्रोग्रामिंग में इतना लेवल में कोई चलता नहीं है स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बच्चों को बस ऐसे, उनको मालूम है बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, और ऊपर ऊपर से सिखा देंगे, बोले बस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर दो, एरिया ऑफ स्क्वायर कर दो, एक एक लाइन का सिखा देंगे बस, एंड टेक दिस मल्टीप्लाई दिस, यू गेट द आंसर। अरे बाबा, उससे मेरा फ्यूचर नहीं बनने वाला है, राइट सिक्का, सिक्का Yes, sir. फ्यूचर बनाना है ना बेटा, Yes, राइट। sir. बट वी आर ऑल फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, और वी डोंट हैव एनी बड़ा बिजनेस, और यू नो कि हमारे पास ऑप्शन है कि चलो यहाँ से भी हम प्रॉपर कुछ नहीं करेंगे, देन आई विल स्टार्ट माय बिजनेस और स्टार्टअप, उसके लिए भी रिक्वायर मनी। तो यू हैव टू, हमारा लाइफ है, हमको भी कभी अपने आप को इंडिपेंडेंट प्रूव करना है कि हम कब तक पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। वी हैव टू प्रूव अवर सेल्फ, राइट, एंड वी हैव टू मेक अवर पेरेंट्स प्राउड। एक अच्छे बच्चे बन के दिखाना है हमको। और इतना आज के टाइम पे जो तुम्हारा सोशल मीडिया है, इतना डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में, ये सब से ये सब डिलीट करो। आदित्य पांडे समझ रहा है कि नहीं। हाँ सर, समझ रहे हैं। यस, और सिर्फ फोकस करो, बस 3 साल फोकस करो, एंड सी टू इट कि हम टॉप 5% में है, जो सर ने बोला था। और देखो अगर ऐसा प्रूव करोगे तो जॉब का गारंटी मैं देता हूँ, और तुम ऐसा नहीं करो तो देन नोबडी कैन गारंटी द जॉब, विच एवर फील्ड। आप कोई भी फील्ड में अगर टॉप में नहीं हो, मेडिकल में भी रहते, अगर टॉप 5% में होते डेफिनेटली आज सिलेक्शन होता था। हम वहां पे भी नहीं ट्राई किए, यहाँ पे भी सब जगह वही हालत है। आपको कहीं ना कहीं तो स्टॉप करके हार्डवर्क करना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स। विदाउट दैट नथिंग इज पॉसिबल, यू नोबडी कैन गिव यू द जॉब इजीली। आपके साथ कंपटीशन में 20 लाख बच्चे हर साल चल रहे हैं, तो आप कहाँ पे हो, आर यू देयर इन द टॉप 1 लाख स्टूडेंट्स। इफ नॉट देन ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। यस सर। और मैं जब प्रोग्रामिंग का बात कर रहा था, हमारा SIS मतलब इतना हम टॉप लेवल में चलते हैं, मे बी 2 इयर्स बिफोर कोरोना, मतलब हमारे बच्चों की प्रोग्रामिंग IIT बच्चों के साथ में कंपटीशन में ऑल ओवर इंडिया दिल्ली लेवल में कंपटीशन हुआ था। SIS कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से 2 बच्चे गए थे, उनके साथ में पार्ट लेने के लिए। इतना रिस्पेक्ट है हमारा, हम लोग जो, मैं जो प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूँ बच्चों को, स्टूडेंट्स आप समझ रहे हो। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे कॉमर्स के बच्चे हैं, मुझे सुधा मैम ने बोला सर थोड़ा इजी में चलना, मैं बोला ठीक है भाई, बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम लेना, नहीं तो मैं तो और ऊपर चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है हमारे बच्चों को मुझे कहाँ लेके चलना है। प्रोजेक्ट कभी हमारे सीनियर से बात कराएंगे आपको हम, तो देन यू फील कि क्या क्या प्रोजेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं सब, मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में, और वही उनका एक एसेट बन जाता है। और उनको तुरंत, मैनी स्टूडेंट्स आर हैविंग द जॉब इन नॉट मोर देन 1, एक नहीं उनके पास 3-3 4-4 कंपनी के ऑफर होते हैं। वो डिसाइड करते हैं मुझे कौन सी कंपनी में जाना है और उनका पैकेज क्या होगा। बेगिंग नहीं करते हमारे बच्चे, बाबा प्लीज जॉब दे दो ना, 25,000 और कम कर दो पैकेज में चलेगा, 50,000 और, 3 लाख नहीं 2,50,000 भी दे दो, ऐसा नहीं है हमारे। हमारे बच्चे डिमांड करना चाहिए स्टूडेंट्स, कंपनी को बेग करना चाहिए, बाबा तू इधर आ जा, मैं तुमको और 1 लाख रुपए देता हूं, ऐसा होना चाहिए आदित्य, राइट। बचपन से ही अभी तुम्हारा बेगिंग का आदत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, लोगों को तुम ऐसा करके दिखाओ, लोग तुमको बेग करना चाहिए, बाबा तुम इधर आओ प्लीज, राइट आदित्य पांडे।
यस सर। यस, नहीं तो हम बेगिंग करेंगे तो हम कहीं पे भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप को प्रूफ करो, सब लोग जितने भी हो, सबके सब, ठीक है। यस सर। यस, नाउ ये सब Yes, sir. इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। नो टीचर यूज टू डिस्कस, एवरी टीचर यूज टू कम एंड जस्ट पढ़ा के निकल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। इट इज अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल द स्टूडेंट्स अबाउट द रियल लाइफ सिनेरियो एज वेल, व्हाट इज गोइंग ऑन आउटसाइड, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री, यू ऑल शुड नो ऑल दिस थिंग्स। चलो स्टूडेंट, जब भी टाइम मिलेगा तो बात करेंगे। आई विल वाइंड अप हियर, हेलो ओके। सर। बोलो बेटा। सर वो 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, 60 मार्क्स का जो सर थियोरी पेपर है उसके अंदर क्या आएगा सर? उसका मतलब पोर्शन है आपके पास? नहीं, उसका पोर्शन ऐसा है बेटा कि अभी वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग। जैसे अभी आजकल शेयर मार्केट कैसा हो गया है, गोल्ड का मार्केट कैसा होता है आजकल, वेजिटेबल फ्रूट का भी रोज भाव ऊपर नीचे होते रहता है, वैसे एजुकेशन भी हो गया है कि वी डू नॉट नो वेदर द एग्जाम इज गोइंग टू बी ऑफलाइन और इज गोइंग टू बी ऑनलाइन। कल यूनिवर्सिटी का सर्कुलर आ जाएगा, बोले चलो दिवाली के बाद सब बच्चों को बुलाओ, इधर ऑफलाइन करो, क्लास बुलाओ, राइट। तो अगर ऑफलाइन एक बार हो गए तो फिर पेपर पैटर्न चेंज हो जाएगा। अगर ऑनलाइन में ही रहेंगे तो पेपर पैटर्न अलग होगा। तो कैफ, आई कैन नॉट टेल यू एनीथिंग राइट नाउ, गेटिंग माय पॉइंट। और हाँ, हम अभी कुछ बोलेंगे कल चेंज हो जाएगा, फिर दिवाली के बाद बोल रहे हैं ऑफलाइन होने का चांस है, नहीं हुआ तो क्या होगा, अभी कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। बट आप अपना बेस्ट की तरफ रहो, अपने को पढ़ाई करना है। ऑनलाइन रहेगा तो भी दे देंगे, ऑफलाइन लिखने के लिए भी आएगा तो भी हम लिखेंगे, राइट। सर क्या पूछेंगे? प्रोग्राम ही पूछेंगे ना, लिखेंगे ना प्रोग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें भी कुछ पता नहीं, एज पर द वी आर फॉलोइंग द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। जैसे गाइडलाइन आएंगी वैसे हमें काम करना है, ठीक है। आप समझ रहे हो कैफ? यस सर। यस। सो दिस क्वेश्चन नो वन कैन आंसर। कोई भी टीचर अगर बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर मैं आज कुछ बोल रहा हूँ बाबा ऑनलाइन रहेगा और ये पेपर पैटर्न है और कल ऑफलाइन हो गया, तब आप मुझे क्या बोलोगे? सर आपने तो ये बोला था, फिर क्या हुआ? अरे मैं क्या बोलूँ बाबा, वी आई एम नॉट मेकिंग फ्रेमिंग एनी गाइडलाइंस, आई एम हियर टू टीच, राइट कैफ? यस सर। यस। और ये प्रोग्राम जो आज लिखे हैं आप ले लेना, मेरे से याद रखना, मैं दे दूंगा तुमको, फाइल नेम याद रखना, ठीक है। ओके सर। यस। ओके स्टूडेंट्स, चलो टेक केयर देन, ठीक है। काजोल, यस सर। तुम्हारे मम्मी पापा से मैं मिलने वाला हूँ कभी, ठीक है, वर्चुअल। यस सर, श्योर, एब्सोल्यूट श्योर सर। हाँ ठीक है, मैं मिलने वाला हूँ। अभी तो कोई नहीं था ना? नो सर, मम्मी बोल रही थी कि सर कितना अच्छा बोल रहे, जरा सर का ही सुन ले। अभी अभी जो बात कर रहा था वो? हाँ सर, अभी पहले जो आप बोल रहे थे सब। हाँ वही, अभी जो जॉब ऑफ के बारे में बात कर रहा था, राइट। यस सर। ओके बेटा, चलो टेक केयर, सब लोग अपना केयर करो, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू, चलो बाय।